Dear students, welcome to video lecture series on surveying. Now today we are going to start second unit, unit number 2, and that is regarding the linear measurement. इसके पहले हमने पहले यूनिट में देखा था कि हमारे जो सर्वे है उसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है. So we have seen the different classification based on the nature of the field, based on the instrument used and the purpose of the survey. Also we have seen that what is the different units used in the surveying measurement, and then how the scale is used for the particular map, what are the topo sheets are there, how the number of topo sheets is carried out, and then what are the different temporary and permanent adjustment required for the surveying. So in first unit we have learn about what is exactly the map layout, what are the compulsory elements in the particular map, and how the surveying is helpful for collecting the field information. While doing all these things, we have also seen that how the accuracy and precision is maintained, how the maximum error or the probable error, how it is calculated, how we can calculate the most probable value of particular observation, and how we can determine the root mean square value, or how we are eliminating the different errors. So that also we have seen in our first unit. Now in this second unit, as already we have discussed, here in this subject we are dealing with the basic surveying, that is plane surveying. तो हम यहाँ पर जियोडेटिक सर्वेइंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी यहाँ प्लेन सर्वे की बात कर रहे हैं. एंड द ओवरऑल पर्पज ऑफ दिस सर्वे वन इज यू मस्ट बी अवेयर अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट and what is their basic use, and with that instrument how we can facilitate the collection of the data for the field topography. So for that purpose we have seen that by using the instrument there are different types of survey. So by using the chain there is chain survey, by using the compass there is compass survey, then by using theodolite there is a theodolite survey, by using level auto level leveling survey, then by using plane table the plane table survey. Likewise these are the different surveys are there. So in our forthcoming units now we are learning one by one the different survey for that. So whenever we go to the field and take the field observation, the very first important thing we have to understand is we are trying to collect the three important entities. सबसे पहले हमें कौन से तीन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है किसी भी जगह के लिए. सो वो है हमारा पहले तो डिस्टेंस, एंड देन अनदर इज डायरेक्शन, एंड अदर इज एलिवेशन. यानी लंबाई, दिशा और ऊंचाई, ये तीनों का सबसे इंपॉर्टेंट हमें डाटा कलेक्ट करना होता है किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी एरिया के लिए, किसी भी टोपोग्राफिक फीचर के लिए. सो इनटू दैट द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस, और इट इज लीनियर मेजरमेंट, यानी लंबाई गिनना या दूरी गिनना, डिस्टेंस और लेंथ, दैट वी हैव टू मेजर. सो आवर फर्स्ट हियर दिस यूनिट नंबर 2, our lesson is dealing with the linear measurement, and particularly here we are focusing on chain surveying. We are focusing on chain surveying. So one by one we will go for this. So in this lesson one we are going to understand what are the instruments for linear measurement. So lesson 1 is about instrument for linear measurement. So as you can see these are various instruments. So one by one we are learning into that. So whenever we talk about the instrument for the measurement of the distance, हमको distance अभी गिनना है, दूरी गिनना है किसी भी पॉइंट के बीच में की. So these are the most important instrument that we are using. So first is by pacing or stepping of the legs. सबसे पहला तो आसान तरीका है कि हम हमारे पैरों से भी चल के हुए गिन सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है. यदि मुझे मेरे पैर के चलने के इसमें का एक स्टेप में का डिस्टेंस यदि पता है, so I can measure the distance. So that is the first method, that pacing or stepping the leg. Another is by using the chain survey, then by speedometer, then by pasometer, then by perambulator, and then by distomat. Then other instruments are also there, that we can use the tachometer, we can use the total station.
So these are the various instrument that we are using for measurement of the distance. Now one by one we will understand. So first instrument, that is, we can say, that is distomat. Nowadays we are all using the technology for various works. So like in our mobile gadgets, there are so many facilities are there that was replaced by the mobile. So like way we are measuring the distance by using the tape or chain. So now this distomat also we can use. So it is an electronic instrument, and where the focal length and the focusing of the object we have to carry out, particular focal length of the lens was adjusted so that by focusing on the object we can read from the screen. So इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक डिस्टोमेट का एग्जाम्पल दिख रहा है. सो यू कैन माउंट इट ऑन द स्टैंड पे लगा के, एंड देयर इज वन कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे कैलकुलेटर के जैसा डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया है. सो देयर इज ए स्विच ऑफ ऑन ऑफ बटन, एंड देयर इज ए लेंस. यहाँ से देखने के लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस भी दिया, आईपीस दिया. यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हो. एंड देयर आर सम बेसिक ऑपरेशन बटन्स आर नेविगेशन बटन्स, और ओके और एस्केप और कैलकुलेट और ऐड सब्सट्रैक्ट, दैट टाइप बटन्स आर देयर. सो सबसे आसान है यहाँ पर कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट को स्टैंड के ऊपर लेवल करके लगा लीजिए, और इसके लिए आपको दूसरे जगह पे आपको रिफ्लेक्टर लगेगा. जहाँ पे आप रिफ्लेक्टर लगेंगे तो यहाँ से आप लोग उसको पहले फोकस करेंगे रिफ्लेक्टर को, और फोकस करके आपने यहाँ पे बटन दबाया रीड का, तो अपने आप से एक लेजर पॉइंटर या फिर माइक्रोवेव, देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर देयर, that light ray will travel and come back, and by that way the distance will be calibrated and it was displayed on this screen. तो एकदम आसान इंस्ट्रूमेंट है, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है. एंड बाय यूजिंग दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऑल्सो, दैट इज डिस्टोमैट, वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पर्टिकुलर स्टेशन. तो जो स्टेशन से आपको गिनना है वहाँ पे आपको डिस्टोमैट रखना पड़ेगा, और अगले वाले दूसरे स्टेशन के आपको रिफ्लेक्टर रखना पड़ेगा. सो लाइक वे यू कैन मेजर द डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टोमैट. देन देर इज अनदर मेथड, दैट इज बाय पेसिंग और स्टेपिंग बाय द लेग्स. हम लोग हमारे पैर के चलने से भी चल के चलते डिस्टेंस गिन सकते हैं, बट दीज आर द अप्रोक्सीमेट मेथड. सो डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय पेसिंग ऑफ द लेग्स. और मैं यदि मेरे नॉर्मल स्पीड से ऐसे चलता हूँ तो मुझे मेरे हर एक चलने के स्टेप में कितना डिस्टेंस मैं कवर करता हूँ, यह यदि मुझे पता है तो मैं गिन सकता हूँ ऐसा 1 2 3 4, ऐसा मैं लेग्स गिन के मैं उसका कैलकुलेशन कर सकता हूँ. सो इट इज़ यूज फॉर द रफ एंड स्पीडी वर्क. आपको अंदाजे डिस्टेंस चाहिए, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं गिनना है हमको. सो इन दैट केस वी कैन यूज दिस मेथड. सो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द लेग्स. कितने चल रहे हैं हम लोग, वो स्टेप्स हमको गिनना है. और हर एक स्टेप का डिस्टेंस यदि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं हर एक स्टेप में 2.5 फीट या 3 फीट कवर करता हूँ, या अप्रॉक्सीमेटली 0.8 to 1 मीटर करता हूँ, तो ये हर एक सर्वेयर को अपना अपना मालूम चाहिए कि मैं एक स्टेप के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता हूँ. ये यदि आपको पता है तो जब रिकॉग्नाइजेंस सर्वे हम लोग करते, जब हमको सबसे पहले किसी भी एरिया का सर्वे स्टार्ट करने से पहले एक चक्कर लगाना होता है और ओवरऑल देखना होता है कि वह कितना लंबा एरिया है, तो उस समय आप मन के मन में आप चलते चलते स्टेप्स भी गिन सकते हो. तो कितना किलोमीटर आपने घूम लिया या लंबाई कितनी है वो एरिया की, all this type of information you can collect. So that is possible, and it is for preliminary reconnaissance survey. So by spacing or stepping by the legs we can measure the distance approximately. So that is another one of the instrument that we are using. Then another is by chaining. तो तीसरा प्रकार है हमारा, हम लोग चेनिंग करके, चेनिंग मतलब हमारे पास में मेजरमेंट की चेन है हमारे पास में. सो इंजीनियरिंग चेन वी आर हैविंग. सो यूजिंग द स्टील चेन. ये स्टील चेन इस प्रकार से होती है, यहाँ पे जैसा उसको एक हैंडल लगा है पीतल का, और उसके अंदर ऐसी लिंक्स है, और हर एक लिंक को बीच के अंदर 3 रिंग एक में अटका के ये लिंक को ऐसा जोड़ा गया है, और ऐसा करके ये पूरी हमारी चेन है. अब ये चेन के यहाँ से आपका डिस्टेंस मेजरमेंट शुरू हो जाएगा, यहाँ से स्टॉप एंड से इसके, और एंड से डिस्टेंस शुरू होने के बाद में जैसा अब ये चेन समझ लो 30 मीटर की है, तो 30 मीटर की होगी तो 5 मीटर के बाद में यहाँ पर उसको एक ऐसा बिल्ला लगे वाला है एक पीतल का. सो इसको एक पॉइंट है बिल्ले को, तो यहाँ पे 5 मीटर हो गया. फिर थोड़ा दूरी के बाद में 10 मीटर के ऊपर ऐसे 2 पॉइंट वाला 2 मुंह वाला बिल्ला लगा होगा यहाँ पे पीतल का, तो 10 मीटर हो गया यहाँ पे.
और फिर 3 मुंह वाला बिल्ला यहाँ पर लगा होगा पीतल का, इट इज कॉल्ड एज टैली। सो ब्रास टैली यानी पीतल का ऐसा बिल्ला पदक ये ऐसा चेन में लगा होता है, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस गिन सकते हैं। अब हर एक चेन के अंदर ऐसा 1-1 मीटर के ऊपर और एक पीतल की ऐसी रिंग लगी होती है। सो ये 1-1 मीटर का डिस्टेंस आपको बताती है। सो लाइक वे द चेन इज मैन्युफैक्चर्ड एंड दैट चेन वी आर यूज फॉर द एक्यूरेट एंड द कॉमन मेथड इन द सर्वेइंग। तो जैसा कि पर्टिकुलरली जहाँ पर जंगल का एरिया है, वहाँ पे ज़मीन रफ है, वहाँ पे पथरीली ज़मीन है और झाड़ है, बुशेश है वगैरह, और रफ ग्राउंड है, और ऐसे जगह पे आपको सर्वे करना है, पर्टिकुलरली इन द फॉरेस्ट सर्वे, पर्टिकुलरली फॉर मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, आपका टेप वहाँ पर जितना ज़्यादा स्टर्डी वर्क आपको नहीं देगा। सो इन दैट केस इट इज़ बेस्ट दैट इस प्रकार से मेटल की जो स्टील की चेन बने वाली है, चेन आप रफ एंड टफ यूज करके मेजरमेंट कर सकते हैं डिस्टेंस का। सो इट इज यूज इन द फॉरेस्ट एंड द रफ ग्राउंड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स आर यूज। लेटर ऑन वी विल सी। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स आर आल्सो देयर दैट वी कैन यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में दोनों जगह पे डिस्टेंस गिनना है, तो एक खूंटी यहाँ पे ठोकनी पड़ेगी, एक खूंटी इधर ठोकनी पड़ेगी, और 2 खूंटी ठोकने के बाद में जमीन के ऊपर वो चेन को खींच के वो चेन से हम लोग 2 पेग में का डिस्टेंस कितना है, 2 खूंटियों में का डिस्टेंस कितना है, 2 पॉइंट में का डिस्टेंस कितना है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। सो दैट इज द अनदर मेथड बाय यूजिंग द चेन फॉर द डिस्टेंस मेजरमेंट। देन अनदर मेथड इज देयर विच इज बाय स्पीडोमीटर। तो हम स्पीडोमीटर से भी डिस्टेंस गिन सकते हैं। लीनियर मेजरमेंट वी कैन measure with the help of speedometer. So as you know that any bike or any car on the dashboard there is a speedometer. तो इसके अंदर कितने मीटर पर आवर हो गया, कितने माइल पर आवर हो गया, या कितने किलोमीटर पर आवर हो गया, इस प्रकार का डिस्टेंस ये इंडिकेटर यहाँ पर दिखाता है। कभी कभी उसके अंदर डिजिटल भी डिस्प्ले होता है यहाँ पे, एंड इट इज यूजिंग द स्पीडोमीटर इन द ऑटोमोबाइल व्हीकल। सेम जो है आप वैसा भी कर सकते। यदि आपके पास में एक बाइक है और बाइक पे यदि आपने स्पीडोमीटर पे बराबर काउंट गिन लिया, तो आप चल के जा सकते और उससे कितना डिस्टेंस कवर हो गया वो भी आप कर सकते। सो लाइक वे देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट वेयर वी आर द स्पीडोमीटर आर अटैच्ड एंड द रोलिंग व्हील will travel along the distance, and by that way the distance will be counted on the speedometer. So it is more accurate but costly method. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीडोमीटर और उसका रोलिंग व्हील एंड ऑल दिस। सो मेजरमेंट इज डन फास्ट, लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादा गति से जा सकते हैं। डिस्टेंस गिनने के लिए आपको जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं, जैसा बाइक या कार से स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करके भी हम लोग डिस्टेंस गिन सकते हैं। जब किलोमीटर में डिस्टेंस है तो आपको काफ़ी दूर लगेगा, मैन्युअली इसको तो पॉसिबल नहीं होगा, इतने दूरी के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। सो इन सच केसेस वी कैन यूज द स्पीडोमीटर। इट इज सिंपल टू यूज बाय एनीबडी। इसको किसी को भी कोई भी गिन सकता है। इससे आपको इनिशियल रीडिंग यहाँ का ख्याल रखना है, और स्टार्ट करने के बाद में फाइनल रीडिंग आपको ख्याल रखना है। सो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, सो यू विल गेट द व्हाट इज द डिस्टेंस you have traveled. So that is another simple way, by using the speedometer also we can measure the distance. Then by passometer. So passometer is another type of instrument where it is the improvement of the leg pacing method. अभी जैसे अपने 2 पैर है उसको हम लोग गिन रहे, उसी के जैसा ऐसा 2 पैर वाला एक ट्राइपॉड वाला इंस्ट्रूमेंट आता है। 2 लेग होते हैं, उसको 2 रॉड होते हैं ऐसे, और वो 2 रॉड को आप ऐसा 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 आगे पीछे स्टेप बाय स्टेप जैसा पैर से चल रहा है वैसा उसको चला सकते हैं। सो इट इज द इंस्ट्रूमेंट लाइक ए स्टॉप वॉच यूज टू मेजर द नंबर ऑफ पेसेस। तो आपको उससे वो रोबोट के जैसा भी आपको उसको चला सकता है ऑटोमेटिकली, और मैकेनिकली यू कैन पेस दैट, एंड बाय दैट वे यू कैन मेजर द हाउ मच नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर, और एक स्टेप में कितना डिस्टेंस है ये आपने यदि ध्यान में कर लिया तो, या फिर आपने उसको मैकेनिकल ऐसा पैसोमीटर का जैसा एक इंस्ट्रूमेंट लगा लिया, तो कितने बार आपने स्टेप्स ली उसके हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय करके आपको कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, दैट आल्सो यू कैन कैरी आउट। सो पैसोमीटर इट रिकॉर्ड्स द नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स आपको रिकॉर्ड करनी है। जैसा मैन्युअली ह्यूमन पैर की स्टेप्स हम लोग गिनते थे, वैसा यहाँ पे मैकेनिकल 2 लेग वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी स्टेप्स आप गिन सकते हैं, एंड फ्रॉम दैट यू कैन मेजर द डिस्टेंस। सो दिस इज द पैसोमीटर। नाउ डेज ऑल दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर वेरी अब्सोल्यूट इन यूज बिकॉज there are advanced instruments are nowadays available. Then another is by
पेरेम्बुलेटर, ये एक सबसे पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है लीनियर मेजरमेंट डिस्टेंस गिनने का। एज यू कैन सी दैट एक यहाँ पे व्हील है और ये व्हील के एक्सल के पास में यहाँ पे काउंटिंग मशीन लगी वाली है बराबर, और इसको यहाँ पर एक हैंडल का रॉड है, और ये जो रॉड है यहाँ पर आपको इसको हैंडल के साथ हाथ में पकड़ सकते। सो यू कैन सेट द काउंटर ऑन द इनिशियल 0 इसको यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट दी है यहाँ पे लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। सो आपको इसको रास्ते पे रखना है, ऐसे चक्के को हाथ में पकड़ना है, और इनिशियल रीडिंग सेट करने के बाद में उसको स्टार्ट बोल दिया आपने कि आपको उसको लेके सिर्फ चलना है बस। सो यू आर वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, और वो चलते 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 आपका जो चक्का ये घूम रहा है बराबर, और इसके रिवोल्यूशन के हिसाब से, इसके पेरीमीटर के हिसाब से कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया वो यहाँ पर जनरली काउंट होता है। सो व्हील इज फिटेड ऑन द फोर्क एंड द हैंडल and the distance per revolution is known. Because of that diameter and distance known, the dial instrument records the number of revolution, and number of recording revolution के हिसाब से फिर आप उसका जो कितना डिस्टेंस आपने कवर किया वो आप कर सकते। सो पेरेम्बुलेटर इज वेरी इजी टू हैंडल एंड वेरी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। तो जनरली ये रोड वर्क जितना भी होता है, तो रोड वर्क में कितना रोड आपने पेविंग का किया, डाबर कितने रोड पे डाला आपने, बिटुमेन कंक्रीट कितने रोड पे डाला, इसका यदि काउंट करना है तो उसकी लंबाई यदि गिनना है तो सबसे आसान तरीका है कि पेरेम्बुलेटर लेके उसके ऊपर एक लेबर को चला ले दो, वो लेबर पूरा कितना लंबा जितना भी रोड आपने किया होगा, सो दैट डिस्टेंस ऑटोमेटिकली गेट मेजर्ड। तो यहाँ पे रोड को ऐसे टर्निंग वगैरह भी है, रोड सीधा नहीं है, ऐसा 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 भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वॉट एवर द अंडुलेशन आर देयर, व्हाट आर द टर्निंग्स आर देयर इन द रोड, आपको सिर्फ बराबर रोड के बीच में से पेरेम्बुलेटर को लेके चलना है। सो इट विल काउंट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, और कितना डिस्टेंस है किलोमीटर में या मीटर में ये आपको यहाँ पर मिलेगा। सो इट इज़ वेरी एक्यूरेटली बट इट इज़ कॉस्टली। सो बट जनरली मोस्ट ऑफ द रोड कॉन्ट्रैक्टर्स they are using or in the PWD for measurement of the exact road paved by the contractor. So this type of perambulator is used. So that is the another instrument for measurement of the linear distance. Now with this different instrument we can measure the distance between the 2 point. हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग डिस्टेंस को गिन सकते हैं, बट एज पर द सिचुएशन, as per the availability of the instrument, as per the type of the topography or type of the ground, or as per the distance or coverage of that area, आप अलग अलग कोई भी suitable method को select कर सकते, suitable instrument select कर सकते, and thereby you can determine the distance between the any two stations. So as far as survey is concerned, there are different accessories for linear measurement. Engineering survey, field survey, land survey या जियोमेटिक्स हम लोग जब बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्वे की हम लोग बात कर रहे हैं, सो देयर वी आर यूजिंग द डिफरेंट एक्सेसरीज. सो व्हाट आर दैट एक्सेसरीज आर देयर? सो देयर इज रेंजिंग रॉड, देन वुडन पेग्स, देन हैमर. देन रेंजिंग रॉड में आपको ऐसे पोल यूज करने पड़ेंगे, वुडन पेग यानी लकड़ी की खुटी आपको यूज करनी पड़ेगी, हैमर हथौड़ा आपको यूज करना पड़ेगा खुटी ठोकने के लिए, मार्किंग के एरो लोहे के ऐसे लंबे लंबे खीले आपको यूज करने पड़ेंगे, मेट्रिक चेन स्टील की जो चेन आपको दिखाया मैंने वो चेन आप यूज कर सकते हैं, स्टील बैंड चेन भी यूज कर सकते हैं आप, चेन के बजाय ज्यादा एक्यूरेट यहाँ पर मिलेगा आपको. और यू कैन ऑल्सो यूज द इंजीनियरिंग चेन, और यू कैन ऑल्सो यूज द गुंटूर चेन, और यू कैन ऑल्सो यूज द रेवेन्यू चेन. बट पर्टिकुलरली डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए आपको रेंजिंग रॉड, वुडन पेग, हैमर, मार्किंग एरो और मेट्रिक चेन इतने एटम आपको लगेंगे. सो दीज आर द एटम ऑलवेज रिक्वायर फॉर द लीनियर मेजरमेंट. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जो स्टेशन है वहां पे आपको एक खुटी ठोकना पड़ेगा, फिर दूसरे स्टेशन पे दूसरी खुटी ठोकना पड़ेगा. अब वो दोनों भी खुटियां इतनी दूर होंगी कि उसके बीच की स्ट्रेट लाइन कहां पर है ये आपको पता नहीं चलेगा. तो बीच बीच में आपको ऐसे रॉड खड़े करके उसको से एक लाइन में लाना पड़ेगा बराबर. तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी तैयार हो जाएगी बराबर, अलग अलग रेंजिंग रॉड को एक लाइन में ला करके, और फिर उसके ऊपर बीच बीच में आपको मार्किंग के एरो भी आप खड़े कर सकते हो, और फिर उसके बीच में आपको हर बार चेन को आगे आगे फैलाते जाना है. सो ऐसा करके हम लोग जो लीनियर मेजरमेंट है ये हम लोग यूज कर चेन से यूज कर सकते हैं. अब इसमें से कौन सी चेन यूज करना, दैट इज द डिफरेंट थिंग. तो हम लोग जनरली मेट्रिक चेन ही इस्तेमाल होती है अभी आजकल तो इंडिया में, बट देयर आर डिफरेंट चेन्स आर देयर दैट वेर यूज ऑन द ओल्डन डेज. सो दैट विल सी लेटर ऑन दैट व्हाट आर द डिफरेंट चेन्स आर देयर. सो दीज आर द एक्सेसरीज दो वी विल सी वन बाय वन. सो हियर in this lesson we can understand that
what are the different instruments for measurement of the distance that we have seen, and what are the accessories for the linear measurement. So in the next lesson we will see all these instruments in the detail and how their use is done. So the lesson 2 we will see here the instrument for chain surveying. हमको यहाँ पे linear measurement के लिए सबसे पहले chain surveying को हमको पहले सीखना है. So in lesson 2 we will focus on the chain surveying, and for this lesson we will stop here, and in the next lesson we will meet again with the lesson 2. Thank you.